Yes. So, good evening, all the participants of this meeting, today's meeting, Environmental Leaders Club meeting. We all are there. Thank you so much for your participation of this Environmental Leaders Club. Uh, we had been taking these meetings from since quite a long time. 1.5 years back, we started it, and today's is the 59th meeting. Every week, we meet for an hour to discuss on the issues of environmental region and दिस ईयर इज ये साल जो है ये साल बहुत अच्छा गया है। अभी इस साल के एंड में हमारा शुरू होने वाला है नए साल का मेंबरशिप एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का। सो उसके लिए आज कुछ बहुत अच्छे ऑफर्स लेके आए हैं। आज सीखेंगे भी, ऑफर्स भी देखेंगे, कैसे कैसे आगे जा सकते हैं एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के साथ में, वो सब आज हम जानने वाले हैं। सो डोंट गो हियर एंड देयर, बी देयर ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन पे आ जाइए अगर कुछ खा रहे होंगे या कुछ, अभी वीकेंड आने वाला है। सो इफ यू आर हैविंग some of your plans for 2 days, so keep it aside for just 1 hour, and next 1 hour we are going to enjoy like anything on this environmental leaders club. So all of you, are you ready to ready for this environmental leaders club meeting? So let us move ahead. Yes, just a minute, I will share the screen so that everyone will be able to see my presentation. So friends, actually this system is new. Today whatever system we are using is a new system. I will be sharing entire screen so that it will be easy for you all to look at this thing. I hope you can see me. Are you able to see the screen? But this will not work. Just a minute. Some technical issue is there. Just need to resolve it. Just a minute. Wait. I will share my screen from some different subject. Are you able to hear my voice clearly? Every one of you? Yes? Okay. Just a minute. Just file is getting downloaded. Till that time, we'll discuss on this new platform. This is a new platform we started using for this environmental leaders club. So in this new platform, what you can see, I will just explain you. There are few buttons here wherein you could see the first is a stage button, mic off, video off. So it's a similar buttons जो अपने गूगल मीट में होते हैं उसी टाइप में बटन है, लेकिन इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक अलग है कि स्टेज का एक कंसेप्ट दिया है, सो दैट सिंस दिस इज अ वेबिनार में आप आ सकते हो, you can talk, you can be present on that. So you need to ask for the permission. So you can ask it from here. So if you want to say that, so you there is one button join.
So this is actually leave stage, because now it is on a stage button, but you can use this button, then stop, then leave. Then there is a chat option. So always you can have a chat with me on from this, because since we all cannot talk at a time, एक बार सब बातें नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने चैट चैट का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन आप ये कर सकते हो। और जो भी ड्यूरिंग द वेबिनार अगर मैं कुछ पोल लेता हूँ या कुछ लेता हूँ, तो आप ये पोल पे जा सकते हो। सो दिस इज द वे wherein we could use this platform as a graphy platform. It is said as a graphy platform। अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्राई करते हैं। हमने इसका पेड वर्जन लिया है बेस्ट इको सॉल्यूशंस ने। सो इसको ट्राई करते हैं, एंड देन इफ इट सूट्स फॉर अस वी विल गो थ्रू दिस ओनली, राइट? सो यस, ऑलमोस्ट डन, जस्ट अ मिनट, 15 seconds are remaining। सो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के लिए ये अभी वेबिनार मॉडल ग्राफी के मोड पे हम लोग करने वाले हैं, एंड उसी उसी मोड पे हम लोग प्लान करेंगे। सो जस्ट आई विल शेयर यू दिस। I hope you all can view my presentation। So welcome to this 59th meetup of Environmental Leaders Club। In last consistency is the key for the success of this Environmental Leaders Club. Till now 650 members have joined, and there are lot of scope to work in this area। आज का जो सेशन रहेगा, आज का सेशन मैं ओवरऑल लेने वाला हूँ। कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो पिछली बार हम हमारे साथ में जुड़े हैं, करीब करीब जो बायोगैस के प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम में आए थे, वो पूरे पार्टिसिपेंट्स 14 पार्टिसिपेंट्स आज रहने वाले हैं। So we'll talk on that, we will talk with them also। So let us start with this Environmental Leaders Club 59th meetup। So yes, all of you, so what is the problem? I start my session with this note, that whatever we are doing in this Environmental Leaders Club, why we are doing this. So why is very much important. You all of you know 70% of our life is covered with the question of why, एंड रेस्ट इज 30% एंड व्हाट। लेकिन हमारे जीवन में उल्टा होता है, हम लोग कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, और कम से कम समय, बहुत ही कम समय हम क्यों इस पार्ट पे देते हैं। जब हम अपना क्यों वेरीफाई करेंगे, देन डेफिनेटली वी कैन एंजॉय दिस लाइफ। तो why I am doing this work, why I am here with you all for this Environmental Leaders Club, क्यों मैं ये करना चाहता हूँ, क्यों मैं हर हर बार कंसिस्टेंटली हर वीक में 1 घंटे के लिए इन सब से मिलना चाहता हूँ। तो उस सब का मेजर मेजर रीजन है प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट environment is deteriorating day by day, and environment is deteriorating day by day, and number of deaths due to environmental pollution is highly increasing। More than hundreds of diseases are there which are caused because of pollution only, so if you सो अगर पोल्यूशन के कारण इतने सारे डेट्स हो रहे हैं, आप अगर आपके आसपास में देखो, आपके 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 ही आस पड़ोस में आप अगर देखो, तो बहुत सारी जानें कैंसर से जा रही है, लंग की प्रॉब्लम से जा रही है, किडनी फेलियर से जा रही है, और इन सब का मेजर रीजन है पोल्यूशन। पोल्यूशन जो घर घर में घुस चुका है, घर के दरवाजे के बाहर नहीं, दरवाजे के अंदर आ चुका है, और हर एक अपने आसपास के लोगों के तक के वो पहुंच चुका है। पोल्यूशन हर एक प्रकार का पोल्यूशन है। पोल्यूशन तो सभी सभी जानते हैं। पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, एवरीथिंग एवरीथिंग इज गेटिंग पोल्यूटेड। और वो पोल्यूशन की वजह से हो क्या रहा है कि नंबर ऑफ डिसीजेस, नए नए डिसीजेस, नंबर ऑफ डिसीजेस क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। सिर्फ ह्यूमन और प्लांट लाइफ, एनिमल और प्लांट लाइफ नहीं, ह्यूमन लाइफ भी बहुत बड़े तरीके से एक्सपोज हो रही है इस पोल्यूशन को, और उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू दिस एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज हाईली इंक्रीजिंग। तो ये मेजर प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो हाउ वी कुड रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इज दैट
we need to have some mission and vision for this environmental leaders club. So we have a vision to collectively save these lives from environmental pollution. collectively बोल रहा हूँ, सबने मिलके बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगर हम सबको मिलके ये काम करना है तो ही हम लोग ये काम कर पाएंगे. सो एनवायरमेंट को पोल्यूशन को निकालना है, एनवायरमेंट को बचाना है, ये अगर काम करना है तो मेरे जैसा अकेला इंसान ये कुछ भी नहीं कर पाएगा. until and unless you all are with me, I can't do anything singly. ऐसे ही होता है. तो इसीलिए हमने ये विजन लिखा है कि कलेक्टिवली सेव लाइव्स फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अगर हमको ये लाइव्स बचानी है, अगर हमको आगे जाना है, अगर हमको इस क्षेत्र में काम करना है, तो हमको साथ मिलके रहना होगा. और इसीलिए ये एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की हमने प्रयोजन किया हुआ है. सो अगर हम देखें तो इसका जो स्टार्ट हुआ है 1.5 साल पहले जब हमने इसको स्टार्ट किया था. सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि उस घटनाओं के वजह से मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एनवायरनमेंट पे काम करना चाहिए और एनवायरनमेंट का जो नॉलेज है वो घर घर तक पहुंचना चाहिए. और इसी माध्यम से हमने इस क्लब की निर्मित की थी. अभी तक के 650 से ज्यादा लोगों ने एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब को एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे आए हुए हैं, शेयरिंग किया हुआ है, यहाँ से उन्होंने नॉलेज लिया है और इम्प्लीमेंटेशन मोड पे गए हैं. तो इसमें से जो भी चेंजेस हुए वो भी बहुत ही क्लासिक है. लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ तो एक क्रिस्टल लाइन रखी है, एक हमने विजन रखा है कि हमको पोल्यूशन से होने वाला जो खतरा है उससे लोगों को बचाना है. सेकंड, हमारा मिशन क्या है? मिशन टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एनवायरमेंटल लीडर्स टू सेव लाइव्स फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन. अगर इनको बचाना है तो हमें ऐसी एक फौज तैयार करनी पड़ेगी जो फौज इस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, इस पोल्यूशन के अगेंस्ट में एनवायरनमेंट के साथ में काम करती है. और इसी के लिए हम कटिबद्ध है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साथ में आए और इस चीज के ऊपर काम हो, इस चीज के ऊपर हमें हमें काम करने को मिले. सो टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ एनवायरमेंटल लीडर्स टू सेव लाइव्स फ्रॉम एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज आवर मेन एजेंडा wherein we wish to work to get more and more number of environmental leaders into this forum of environmental leaders club. Uh, you all are there with me, I know, because बहुत सालों से 1.5 सालों से आप सभी लोग आ रहे हो यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा सीख के उसका इम्प्लीमेंटेशन मोड भी हमारा जा रहा है. तो इसके लिए मुझे पता है कि आप सब लोग उस चीज में हमारे साथ हो. सो this is our vision, this is our mission, and then when we decide vision and mission, then the next part is what are my core values, what are our core values. हम सब लोग यहाँ पे जितने भी मेंबर्स इस मीटिंग में आए हैं वो इसीलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में समानता है. तो वैसे कौन सी समानता है? अगर हम देखें कि कौन सी चीजें हम लोग सेम रख सकते हैं, तो एक है कंपैशन. व्हेन वी आर सेइंग दैट वी वांट टू सेव लाइव्स, देन डेफिनेटली वन ऑफ द कॉमन पार्ट इज अ कंपैशन. आपको दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए. जिसके बारे में आप काम कर रहे हो उसके लिए सबसे पहले खुद के ऊपर दया होनी चाहिए, खुद के ऊपर करुणा होनी चाहिए, एंड देन यू कैन यूज दिस फॉर द अदर्स आल्सो. इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी इन व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, इट शुड बी देयर. देन द सस्टेनेबिलिटी मींस व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू सस्टेन. कैसे सस्टेन होना है? जो भी मैं हमेशा एक एग्जांपल कहता हूं कि जब आप घर में सब्जी लाते हो, कोई सब्जी काटी जाती है, सब्जी बनाई जाती है, बची हुई सब्जी हम लोग उसका कंपोस्ट बनाते हैं, वो कंपोस्ट खेत में जाता है. कंपोस्ट खेत में जाने के बाद में उससे फिर से आपका जमीन मिट्टी तैयार होता है और वो मिट्टी के माध्यम से फिर से नए पेड़ पौधे उगते हैं. तो ये जो है, ये सर्कुलर जो मोशन है, इसको कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी, या इसको कहा जाता है सर्कुलर इकोनॉमी, या इसी को माना जाता है कि हम लोग किस हिसाब से ये सस्टेनेबिलिटी में काम करें. तो हर एक एक्टिविटी व्हाटएवर वी आर डूइंग, वी नीड टू चेक कि क्या एक्टिविटी सस्टेनेबल है, क्या ये मैं जो काम कर रहा हूँ ये सस्टेनेबली काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. तो ये हमने सोचना चाहिए. तो ये बहुत जरूरी है. सस्टेनेबिलिटी इज अवर थर्ड कोर वैल्यू, जो हम सब लोग इसको मानते हैं और इसी के साथ में हम लोग काम करते हैं. एबेंडेंस. एबेंडेंस इसका मतलब है, एबेंडेंस का मतलब है कि परिपूर्णता. हर एक सब्जेक्ट में परिपूर्णता होनी चाहिए. कौन से सब्जेक्ट में? तो मैं मानता हूं कि जीवन के 4 मुख्य पहलू है. वो जीवन का मुख्य पहलू, 4 मुख्य पहलू: एक पर्सनल लाइफ,
एक पर्सनल लाइफ में आप खुद के पूरे एक्टिविटीज आ गए। प्रोफेशनल लाइफ मतलब आप प्रोफेशनल में जो भी कर रहे हो, आप कहीं ऑफिस जा रहे हो, आप कहीं आपका खुद का बिजनेस है, आप जो भी कर रहे हो वो प्रोफेशनल लाइफ, उसके साथ में जुड़े हुए लोग, ये सब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। प्रोफेशनल रिलेशंस में आते हैं, आपके क्लाइंट्स है, आपके वेंडर्स है, आपके जो भी लोग साथ में हैं, तो ये सब प्रोफेशनल लाइफ में आता है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसके बाद आता है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ मतलब आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त लोग हैं, आपके आसपास का वातावरण है, क्योंकि देखो पूरा ह्यूमन सिस्टम है, पूरा ह्यूमन सिस्टम इसी से बना हुआ है। आप अगर देखो तो आपका लाइफ ही आपके आसपास के लोगों से बना है, आपके एसोसिएशन से बना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे एसोसिएशन में रहते हो और किस हिसाब से आप बढ़ना चाहते हो, ये बहुत मायने रखता है। और इसीलिए एबंडेंस पे हम लोग बहुत ख्याल देते हैं कि आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पिरिचुअल लाइफ, तो इन चारों चीजों में ऐसा काम होना चाहिए, परिपूर्ण काम होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमको उस क्षेत्र में काम होने चाहिए। पैसा आए तो पैसा भी बहुत आए, आपके पास में प्रॉस्पेरिटी आए, आपके पास में रिलेशन में आपकी ताकत हो, सोशल लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़े हुए हो, तो ये सब चीज़ें अगर होंगे तो वही एबंडेंस का कोर वैल्यू है। तो उसी को एबंडेंस कहा गया है। तो ये एबंडेंस हम चाहते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको ये एबंडेंस मिले। तो कंपैशन है, इंटीग्रिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, एबंडेंस है, ये चारों चीजें हम लोग चाहते हैं। ये चार कोर वैल्यूज है। उसके साथ में और क्या है, रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट सबसे पहले मुझे लगता है कि सबसे पहले खुद खुद के लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ, वो किस किस हिसाब से इम्पोर्टेंट है और किस चीज के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ये अगर हमें हमें पता होगा तो डेफिनेटली हमारे खुद के बारे में हमारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और वो रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो ये रिस्पेक्ट एक कोर वैल्यू है हमारे सिस्टम की, जो हम लोग प्लान करते हैं। उसके बाद में है पॉजिटिव इम्पैक्ट। मैं कर रहा हूँ उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है क्या, मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरे जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या मैं छोटा सा जो काम कर रहा हूँ क्या वो दूसरों के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहा है, नहीं ला पा रहा है। सही है। तो ये चीजें कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन वी आर सेइंग कि हमारे लिए ये कोर वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि मेरे लिए, कोठारी सर के लिए, खंडू जी के लिए, प्रणीता के लिए, मदन मोहन सर के लिए, ये सब जो भी आप यहाँ पे इसमें अवेलेबल हो, जो भी पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट अवेलेबल है, वो कुछ ना कुछ पार्ट इसमें से शेयर करते हैं, जरूर शेयर करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम मानते हैं कि शेयरिंग इज अवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू, जिसमें हम चाहते हैं कि हम जितना भी कमाते हैं, हम पूरे साल में जितना भी हम पैसा कमाते हैं, उससे 10% हम डोनेट करते हैं कुछ ऐसे चीजों के लिए कि जो हमारे दिल के पास में है, जो हमको लगता है कि इस चीज पे हमारा ये होना चाहिए। जैसे आप कोई भी इसके लिए कर सकते हो। किसी को ऐसा लगता है कि अनाथ लोगों के लिए खर्चा करना चाहिए, किसी को लगता है कि नहीं गरीबों के लिए दान होना चाहिए, किसी को लगता है नहीं टेम्पल में, मंदिर में दान देना चाहिए, या किसी को लगता है कि नहीं मुझे ये फार्मर के लिए कुछ तो चीजें करनी है। आप वॉट एवर थिंग यू वांटेड टू डू, बट शेयर योर दैट मच परसेंट फॉर दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू कम एट योर लेवल। देखो हमारे हमारे लाइफ में हमको भगवान ने बहुत बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर हम इस प्रकार की हमारी सोच रखेंगे, तो ये जो 10% जो 10% आप लोगों को दे रहे हो, वो 10% से आपके जीवन में आने वाला आनंद ये 100 गुना से बढ़कर होगा। क्योंकि ये मैंने देखा है, और इसीलिए मैंने ये कोर वैल्यू इस क्लब के कोर वैल्यू में डाली है। क्योंकि आई नो जब हम शेयर करते हैं, जब हम किसी को कुछ देते हैं, तो उसका जो आनंद है, या उसके वजह से जो हमारे जीवन में समृद्धि आती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा-सा आप करके देख सकते हैं, मैं पिछले कई सालों से ये चीज़ करते आ रहा हूँ, जो भी मेरा अर्निंग है, उसमें से मैं 10% वैल्यू ये समाज के लिए या स्पिरिचुअल कॉज़ के लिए रखता हूँ, और दैट हेल्प्स मी टू ग्रो। तो जितना देते हो, देने से बढ़ता है। ये हमारे संस्कृति में कहा गया है। तो उस हिसाब से ये हमारी जो पूरे एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब की नींव है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपैशन, इंटीग्रिटी, सस्टेनेबिलिटी, एबंडेंस, रिस्पेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड शेयरिंग। तो ये हमारे कुछ कोर वैल्यूज है जिनके ऊपर हम लोग काम करते हैं, और इसी के लिए हमारा काम शुरू है। और जो आपको मिशन और विजन बताया गया है, तो वो मिशन और विजन के लिए हम लोग काम करते हैं। सो शुड वी मूव अहेड? यस।
ओके, ऑल ऑफ यू, कैन यू हियर मी? जस्ट गिव इन अ चैट बॉक्स अगर मेरा आवाज आप तक क्या आ रहा है, क्योंकि मुझे हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू कैन हियर मी. इज माय वॉइस इज क्लियर? हेलो एवरीवन. Ashish sir, you are absolutely clear. Okay, okay, thank you, thank you so much. Yes, so yes, so these are our core values, and and then the next part is अभी तक के जितने भी मीटिंग हुए, एज आई सेड 59th, टुडे इज द 59th मीटिंग. लास्ट 58 मीटिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए. एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का फॉर्मेशन इसलिए हुआ था कि उसमें हम चाहते थे कि लोगों को लर्निंग मिले और उसके माध्यम से लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाए. इसके लिए हमने एनवायरमेंट लीडर्स क्लब का फॉर्मेशन किया है. और उसके दौरान जो भी चीजें हमारी हो रही है, उसमें जो जो टॉपिक्स हमने लास्ट कुछ मीटिंग्स में क्रिएट किए हैं, वो मैं बताना चाहूंगा. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कौन से प्रकार के करियर अपॉर्चुनिटीज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, क्या कर सकते हैं, ये हमने कुछ कवर किया है. वेस्ट वाटर पे हमने हमने प्रोग्राम लिया है, ई वेस्ट लिया है, कंपोस्टिंग लिया है. कंपोस्टिंग का तो पूरे डिटेल में 6 सेशंस हमने कंपोस्टिंग पे लिए है. एयर पोल्यूशन पे काम किया है, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, देन गिल्ड कल्चर एंड शेम कल्चर. बड़ा अच्छा टॉपिक था. सूरज सर ने हमें हमें बताया था कि गिल्ड कल्चर क्या होता है, शेम कल्चर क्या होता है, और उसके माध्यम से हमने बहुत अलग सोच देखी थी कि जैसे किसी कंट्री में हम जाते हैं, उस कंट्री में अगर प्लास्टिक पे बैन है, तो जो 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 गुटखा या कुछ खाते हैं और उसके बाद में जो रैपर बाहर फेंकते हैं, वो रैपर बाहर नहीं फेंकते दूसरे कंट्री में जाने के बाद. क्यों? क्योंकि वहां पे रूल्स बने हुए हैं. यहाँ पे वो हम लोग अगर कोई देख नहीं रहा तो बाहर फेंकते हैं. स्पिटिंग करते हैं, कोई देख नहीं रहा तो हम स्पिट करते हैं. अगर कोई चॉकलेट खाए, चॉकलेट का रैपर हमारे जेब में है, वो हम बाहर डालते हैं जब कोई देख नहीं रहा हो. क्यों? क्योंकि हमको शर्म आती है. तो इट वॉज अ शेम कल्चर. सेकंड कल्चर हमने देखा था गिल्ट कल्चर, कि अगर बाहर के देशों में हम जाते हैं तो बाहर के देशों में ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो लोग गिल्ट कल्चर में जाते हैं. वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको बुरा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, ये हमने नहीं करनी चाहिए. तो ये बड़ा अच्छे से उन्होंने टॉपिक कवर किया था एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब में. और बहुत सारे टॉपिक्स है. ब्लैक सोल्जर फ्लाई पे हमने काम किया था. ब्लैक सोल्जर फ्लाई, बायोगैस पे हमने काफी सेशंस लिए हुए. गोवर्धन का पूरा स्कीम के लिए हमने एक सेशन कंप्लीट दिया हुआ है कि गोवर्धन सेशन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है. काऊ एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, इसके ऊपर हमने काम किया था कि काऊ इम्यूनिटी बूस्टर कैसे 5000 साल पहले से अगर जो काऊ आ रही है, तो काऊ किस प्रकार से गाय जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है. देन माइंडसेट टू जीरो वेस्ट. जीरो वेस्ट अगर हमको करना है तो जीरो वेस्ट में हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये हमारा पिछले बार के कुछ सब्जेक्ट है. फ्लावर वेस्ट का हमने कंप्लीट सेशन फ्लावर वेस्ट पे लिया था कि फ्लावर वेस्ट हम लोग किस किस प्रकार से फ्लावर वेस्ट पे काम हो सकता है, क्या उससे कंपोस्ट बन सकता है, क्या उससे अगरबत्ती बन सकती है, क्या उससे सेंट बन सकता है, क्या उससे अलग प्रकार का फैब्रिक क्रिएट किया जा सकता है. ये पूरे सेशंस हमने इसमें कवर किए थे. देन एग्री वेस्ट के ऊपर हमने काफी अच्छे सेशंस इसमें लिया था. 1 ही घंटे का समय होता है हमारे पास में, लेकिन ये 1 घंटे में हमने काफी चीजें पिछले कुछ सेशंस में कवर की है. देन हमने ईपीआर पे भी काम किया था. ईपीआर मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये क्या होता है, कौन सी कंपनियां हैं जो इसको इसमें बिलोंग करती है, और इस कंपनियों के माध्यम से क्या हम कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में इसकी कवर की है. अभी नेक्स्ट अगर हम एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का अगर नेक्स्ट पार्ट देखें, तो हम लोग 3 पार्ट पे मेजरली काम किए हैं पिछले साल. माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट. तो माइंडसेट मतलब जो अभी बताया कि बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, कचरा व्यवस्थापन या इसमें हम उसको लेके क्या काम करना चाहिए. स्किल सेट मतलब कौन से स्किल सेट इसमें जरूरी है, कौन से स्किल सेट से हमने काम करना चाहिए, ये हमने उसमें देखा था. और टूल सेट मतलब जो जो चीजें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगती है, उसके लिए क्या टूल्स लगते हैं, उसके लिए भी हमने पिछली बार काफी अच्छे से इसमें हमने एक्सप्लेनेशन लिया था.
और ये तीनों पार्ट्स हमने कवर किए थे। अभी ये बेसिक लाइन वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन इसके बाद में हम लोग जो कर रहे हैं थोड़ा सा स्पेसिफाइड हो, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट हो, ऐसा मेरा मानना है। हम सब लोग एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के मेंबर्स हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो आए हुए हैं, तो उन मेंबर्स के माध्यम से हम लोग ये आगे और बढ़ाने वाले हैं। जनवरी से हम कुछ नए प्रयोग लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन तो ले ही पाए, लेकिन कुछ एक्शनेबल्स इस चीज में कर पाए, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध है, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट, ऐसे 3 एस्पेक्ट पे हमने काम किया हुआ है। ठीक है, तो अगर देखें तो अलग-अलग प्रकार के प्रोग्राम्स हुए हैं, जिसमें कुछ ऑनलाइन हुए हैं, कुछ ऑफलाइन हुए हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम हुए, ऑनलाइन मीट इस प्रकार की होती है, जिसमें हम कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। और सबसे सबसे बढ़िया ये बात है कि हम लोग जब ये प्रोग्राम्स करते हैं, तो ये ऑनलाइन के साथ-साथ हमने कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी इसके साथ में जुड़ी हुई है। ऑफलाइन कुछ प्रोग्राम्स हमने लिए, जैसे बिकम एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब, फ्यूल योर फ्यूचर, ऐसे कुछ प्रोग्राम लिए। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, एनवायरमेंटल वॉरियर, बायोगैस के लिए हमने कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम लिया है। ये सबसे पहला ऑफलाइन प्रोग्राम था जो जो बायोगैस में हमने पिछले साल लिया था। उसके लिए विजिट भी थी, इंडस्ट्रियल विजिट भी हमने करवाई थी। इट वाज ऑसम प्रोग्राम और बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हुए थे। अभी तक के जो प्रोग्राम्स हमने डिलीवर किए हैं, वो प्रोग्राम्स इस प्रकार से है। एनवायरमेंटल वॉरियर्स करके एक प्रोग्राम किया लिया था, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल कंसल्टेंट। कंसल्टेंट किस प्रकार का होता है, उसने कैसे काम करना चाहिए, इसके ऊपर काम हुआ था। एवरीथिंग अबाउट कंपोस्टिंग, ये एक प्रोग्राम लिया था। वेस्ट मैनेजमेंट स्कूल, 7 दिन का कंप्लीट स्कूल लिया था। ये 7 दिन के स्कूल में हमारे करीब करीब 14 एक्सपर्ट्स आए थे। अलग अलग वे पे 14 एक्सपर्ट लोगों ने काम किया था। कोई रिसर्च से थे, कोई प्रोडक्शन में से थे, कोई इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे थे, कोई यूजर्स थे। तो ये सब ये सेज यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ में हमने ये प्रोग्राम लिया था। इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। सो ये कुछ चीजें हुई। फ्यूल योर फ्यूचर विद बायो एनर्जी लास्ट ईयर का प्रोग्राम था। ये बहुत अच्छा बायो एनर्जी, बायो हाइड्रोजन पे, बायोगैस पे ये प्रोग्राम लिया गया था। उसके बाद में ग्रीन करियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये कॉलेज गोइंग बॉयज के लिए, कॉलेज गोइंग बॉयज और गर्ल्स के लिए हमने ये प्रोग्राम लिया था, जिसके माध्यम से बच्चों को ये एनवायरमेंटल सेक्टर में क्या स्कोप है, क्या वो कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बातचीत की थी। इट वाज वंडरफुल। बहुत सारे प्रोग्राम, जीरो वेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए हमने एक अलग से प्रोग्राम लिया था। बायोगैस वर्कशॉप एंड साइट विजिट किया था। मैजिकल मशरूम मॉडल, मशरूम में क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए एक अलग से सेशन था, मैजिकल मशरूम मॉडल। देन सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्रीन करियर, जो अभी मैंने आपको बताया वो था। अभी हमने एक रिसेंटली 4-5 दिन पहले 29 और 30 नवंबर को हमने एक प्रोग्राम लिया था, जिसका नाम है द अल्टीमेट बायोगैस मास्टरी प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। बहुत सारा लोगों का इसमें साथ रहा, और बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये किया गया। इसमें पूरा फोकस जो था वो एनवायरमेंटल बायोगैस पे ये प्रोग्राम दिया गया था। और इसकी खासियत ये थी कि ये दैट वाज नॉट ओनली टेक्निकल प्रोग्राम, जैसे हर बार में टेक्निकल प्रोग्राम होते हैं, तो वैसा ये टेक्निकल प्रोग्राम नहीं था। ये प्रोग्राम था एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसे कहा जाता है कि अनुभव आधारित जो चीजें होती है, उससे हम लोग ज्यादा फास्ट सीख सकते हैं, ज्यादा ज्यादा देर तक के हम लोग सीखा हुआ जो है वो उसको याद रख सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये बायोगैस प्रोग्राम, मास्टरी प्रोग्राम लिया था। तो इट वाज वंडरफुल। कंप्लीट 2 दिन का प्रोग्राम पूना में एक द सेंचुरियन होटल करके है, वहां पे हमने ये आयोजित किया था। और अलग अलग सेक्टर से लोग आए थे, स्टूडेंट थे, रिसर्चर थे, प्रोफेशनल थे, एंटरप्रेन्योर्स भी थे, और साथ ही साथ में इन्वेस्टर भी थे। मीटिंग में है कोठारी सर, थे, मदन मोहन सर नहीं, और कौन थे, हाँ मीटिंग में सूरज जी है। और ये मीटिंग में जो किया गया था उसमें ये अलग अलग सेक्टर से लोग आए थे, और यहाँ पे इनको एक्चुअल में
एक्सपीरियंशियल वे से सिखाया गया कि बायोगैस होता क्या है, बायोगैस के सबस्ट्रेट्स क्या-क्या होते हैं, बायोगैस कैसे बढ़ता है, बायोगैस को कैसे बढ़ाना चाहिए, बायोगैस के अलग-अलग मॉडल क्या होते हैं, डाइजेस्टर्स कैसे होते हैं, बायोगैस के प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, बायोगैस में रिसर्च कैसे किया जाता है, बायोगैस में अगर आपको प्लांट लगाना हो तो आपकी क्या प्रीरिक्विजिट होती है, क्या-क्या चीज़ें आपको पहले करनी होती है, ये सब का डिस्कशन और ये सब चीज़ें हमने ये अल्टीमेट बायोगैस मास्टरी प्रोग्राम में दी थी। बहुत अच्छे से नागपुर से लोग थे, यवतमाल से लोग थे और अलग-अलग जगह से नागपुर, यवतमाल, लखनऊ, यूपी, पुणे, मुंबई इस रीजन से लोग आए थे। So it was a wonderful thing, and on the basis of this, we had decided to have a next biogas mastery program on 3rd and 4th January in Pune only. So this is also going to happen in a Pune. ऑफलाइन प्रोग्राम है, 2 दिन का प्रोग्राम है, सेम सिमिलर शेड्यूल रहेगा और उसके बाद का प्रोग्राम हमने नागपुर में प्लान किया है। सो दीज आर द अपडेट्स फ्रॉम माय साइड्स फॉर इन रिलेशन विद द whatever programs and those things what we are doing now, right? So yes, नेक्स्ट इज आज का मीटिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के मीटिंग में हम लोग कुछ नई चीज़ें करने वाले हैं। कुछ ऑफर्स हमने आज के मीटिंग में आज के मीटिंग के लिए रखा था। आज के मीटिंग के लिए फ़ोन कॉल्स भी गए थे और फ़ोन कॉल में हमने काफ़ी लोगों को बताया भी था कि आज के मीटिंग अगर आप अटेंड करोगे तो कुछ ना कुछ आपको एक बम्पर थिंग हम आपको आपको देना चाहते हैं। क्या हुआ था, कुछ थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड दूँ। अ, ये अभी प्योरली जो लोगों ने अमाउंट कुछ पेड किया है उन्हीं लोगों को मैंने आज के मीटिंग में इनवाइट किया है। मैं पिछले 1.5 साल से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। इट वाज़ प्रीवियसली, लेकिन अभी पिछले मीटिंग में जो कि हम लोग गूगल मीट पे लेते थे, तो it was really a dangerous thing happened last time that some few of the people have entered into the uh, community and directly they enter into live meeting। और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ स्कैम टाइप में, मतलब कुछ उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी एंड दे वर नॉट रियली अ गुड पीपल एंड आई नीड टू स्टॉप दैट मीटिंग एट दैट मोमेंट ओनली एंड आई कुड रियलाइज कि ऐसे स्पैमर्स और ऐसे लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं जब ये ओपन टू ऑल होता है। So immediately I decided, no, I wanted to go for some of the paid softwares wherein I can maintain the dignity of the program, wherein I can जो भी लोग आते हो, जो भी लोग आप आपका अमूल्य समय यहाँ पे दे रहे हो, आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ लेके जाना है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये ऐसा काम नहीं चलेगा। सो दैट्स व्हाई immediately I purchased this graphic program and I started shifting on this। थोड़ा नया है, थोड़ा दिन जाएगा हमको, 1, 2, 3 मीटिंग तक के हम इस जब जब तक के इसमें हम लोग प्रो नहीं हो जाते तब तक थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू सिक्योर आवरसेल्फ वाया सच थिंग कि हमें आगे इसका तकलीफ नहीं होगी। खंडू जी को पता है जिस हिसाब से हमने पिछली बार का प्रोग्राम एकदम एब्रप्टली बंद कर दिया था। सो दिस शुड नॉट हैपन इन अ मोर टाइम। इसीलिए हमने अभी ये शिफ्ट किया है, ये चेंज किया है। जस्ट आई वांटेड टू आस्क यू हाउ मेनी ऑफ यू इन दिस मीटिंग आर अ पेड मेंबर फॉर एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब। एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के पेड मेंबर्स कौन-कौन हैं? उनके लिए मेरे पास में कुछ खास इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको आज देना चाहूँगा। कोई है तो येस करके चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो या ईएलसी आप लिख सकते हो। ईएलसी, एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब। जिन्होंने पेड मेंबरशिप लिया हुआ है एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का, वो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ईएलसी। यस, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे एक विंडो है मैसेज की। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कौन-कौन यहाँ पे पेड मेंबर है ईएलसी का। ईएलसी, ओके, थैंक यू खंडू जी। खंडू जी इज अ पेड member for this ELC, right? वैशाली इज ऑल्सो देयर, फ्यू पीपल आर नॉट अवेलेबल, लेकिन खंडू जी यहाँ पे अवेलेबल है। खंडू जी कंसिस्टेंटली बहुत सारे मीटिंग को, सभी मीटिंग को, ऑलमोस्ट सभी मीटिंग को खंडू जी अवेलेबल थे और उनकी उपलब्धता ये ये इसलिए उपलब्ध नहीं थे कि इनको
समय ही समय है, दूसरे कुछ काम नहीं है। ये चीज़ नहीं है। हर कोई यहाँ पे जो अपना समय दे रहा है, उसको कुछ ना कुछ यहाँ से मिल रहा है। एट द सेम टाइम ही इज़ विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कुछ ना कुछ देना चाहता है, समाज को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहता है और लर्निंग कुछ करना चाहता है, इसी के लिए वो यहाँ पे है। सो कांग्रेचुलेट टू वी ऑल शुड कांग्रेचुलेट टू Khandu ji, because Khandu ji will be given next year's paid membership, जो अपनी कंप्लीट पेड मेंबरशिप है वो उनको कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है। सो खंडू जी, वेलकम टू दिस एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब। नेक्स्ट ईयर का जो 2025 का पूरा एनुअल मेंबरशिप है वो आपको कंप्लीटली मिल रहा है और हम लोग इस साल का पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग काम करने वाले हैं। इस बार के मीटिंग में हम लोग पूरा समय वो स्ट्रक्चर बनाने में लगाने वाले हैं एंड देन वी विल वर्क ऑन दोज ऑल मीटिंग्स. So it's a wonderful that you are here and you got a full complete membership of Environmental Leaders Club. ऐसे कौन है यहाँ पे जिन्होंने कोई ELC उनका नहीं है, लेकिन कोई ना कोई दूसरा कोई ना कोई आपने प्रोग्राम, जो भी मैंने अभी प्रोग्राम के नाम बताए, एनवायरमेंटल काउंसलर, एनवायरमेंटल वॉरियर, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम किया है। उन्होंने पीपी लिखना है, पेड प्रोग्राम पीपी लिखना है चैट बॉक्स में। अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप ये इस वेबिनार में हो तो आपको पीपी लिखना है इफ यू आर देयर, सो दैट यू कैन चेक ऑन दिस. मदन मोहन जी, yes. Anybody else? Okay, fine. I hope Madan Mohan ji are there. Yes. So Madan Mohan ji, Pranita ma'am also, and Vaishali also. Everyone is getting this thing. Only thing is that I will explain how we are going to do that. So even if you are a paid member, you will be getting who has attended today's meeting. They will be getting a complete new access for this Environmental Leaders Club. जैसे मैंने इसके पहले बताया, कुछ चीजों की वजह से जो पिछली बार के जो प्रॉब्लम्स हुए उसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया गया है और हम इसको स्ट्रक्चरल प्रोग्राम बना रहे हैं पूरे 52 वीक्स का। और मुझे ऐसे लगता है कि नाउ वी शुड नैरो डाउन कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट। हमने पिछले बार लिया था एंड वी नीड टू नैरो डाउन, वी नीड टू कम डाउन टू अ सिंगल एस्पेक्ट। उसके ऊपर हमारा काम होना चाहिए। क्या क्या टॉपिक, कैसे कैसे टॉपिक हमको लेने चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। जस्ट अ मिनट। तो आपको क्या लगता है कि कितने और कौन से टॉपिक्स इसमें होने चाहिए? इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना है। सब लोग मिलके अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। मैं एक लिंक इसमें डाल रहा हूँ। ये लिंक पे जाना है और ये लिंक पे भर के आपको इसके ऊपर सिर्फ ऐसे 5 टॉपिक, 3 या 5 टॉपिक आपको लिखने हैं जो आप चाहते हो कि एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब में मिल जाए। सबको मिल गया? Yes, Vaishali is saying golden membership. Yes, Vaishali. तो जितने लोग हैं यहाँ पे, जो लोग पेड मेंबर्स हैं, उन लोगों को एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का 2025 का मेंबरशिप मिल रहा है। मैंने बाकी सब लोगों का जो फ्री एक्सेस था वो मैंने रिमूव कर दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ वो मैं फिर नहीं चाहता कि किसी चीज में हम उस मोड पे जाए। इसलिए वी विल बी अ क्लोज ग्रुप। वो क्लोज ग्रुप में ही काम होगा। अभी जो पिछली बार के 22 मेंबर्स थे जो पेड मेंबर है, और अभी के नए आए हुए 12 मेंबर्स एंड बचे हुए जो 7 मेंबर्स शायद एनवायरमेंटल वॉरियर्स और काउंसलर मोड पे, ये सभी लोग इसमें सहभागी होंगे। जो 4 मीटिंग्स 5 मीटिंग्स देने थे वो हम 52 मीटिंग्स तक के एक्सटेंड कर रहे हैं।
इसका बाकी पेड प्रोग्राम वैसे ही चलते रहेगा, लेकिन ये जो स्पेसिफिक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करना है और उस मोड के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के लिए मैं सबका स्वागत करता हूँ कि आप लोगों का इसमें वेलकम करता हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अगले वाले जनवरी से हम लोगों का मोड चालू होगा, लेकिन उस तक के मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक बंदा ये सोचे कि हमें एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के माध्यम से इस बार कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। इसके लिए मैंने एक फॉर्म दिया है, वो कृपया सब लोग कॉपी कर लें। सब लोगों को फॉर्म मिला है क्या? आर यू एबल टू एक्सेस द फॉर्म? Yes or no? You can write in a chat box. Yes or no? Yes. Okay. ठीक है, अगर आप सबको ये फॉर्म मिला होगा तो कृपया वो चीज़ ज़रूर कीजिएगा कि आपको उसमें लिखना है कि कितने टॉपिक्स आप चाहते हो कि कौन से टॉपिक्स पे ये होना चाहिए। पिछली बार की जो मेंबरशिप थी, जो हमने बोला था ये पूरा हमने कवर किया है, लाइफ टाइम मेंबरशिप थी, 52 सेशंस हमने लिए। अभी आज के सेशन में जो बताया वो पूरा हमने किया हुआ है। अपॉर्चुनिटी फॉर नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन एनवायरमेंटल सब्जेक्ट, सर्टिफिकेशन कोर्स था, सर्टिफिकेट भी दिया गया था and paid community access, so that was the part। एंड इसके लिए आपको इसमें से अगर आपके आपके ग्रुप में से अगर कोई ऐसा होगा कि जिसने ऑलरेडी नहीं देखा है या नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो जा सकता है अभी भी इस मोड पे। 6999 ये प्राइस है और इसी के साथ में अगर ये कोई करता है तो इसके साथ में उनको नेक्स्ट वाला एक ऑफलाइन प्रोग्राम भी इसके साथ में हम लोग देने वाले हैं। सो ये आप चीजें कर सकते हो, दैट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। Next part, yes, all paid environmental leaders members will get a year 25 annual membership for free, and environmental volunteer will receive this membership. So this was the things which we had discussed on this। तो इसमें आपको क्या लगता है कितने लोगों ने, अगर आपने भरा होगा तो कितने लोगों के ये फॉर्म भरा है? यस, यस। ओके, सो मैं कुछ इसके ऊपर मेरा ये शेयर करना चाहूँगा। बहुत नाउ दिस इज एक्चुअली, अगर हम बोल रहे हैं कि ये 59th मीटिंग है तो मैक्सिमम वे पे ऐसे होना चाहिए कि जो लोग इस मीटिंग में आएंगे उन लोगों का भी पार्टिसिपेटिव मोड पे जाना है। तो जो लोग मीटिंग में आएंगे उनको पार्टिसिपेटिव मोड पे जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्टिसिपेशन होगा तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस हिसाब से हम लोग उसको आगे लेके जा सकते हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ, वो फॉर्म आपको भरना है। आपको फॉर्म भरेंगे तो फिर हम लोग उसका आगे लेके जा पाएंगे। जस्ट अ मिनट। फॉर्म भरिए प्लीज। फॉर्म में आपको सिर्फ 5 ऐसे टॉपिक्स देने हैं कि जिसमें आपको लगता है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर हमको काम करना है इस बार के लीडरशिप प्रोग्राम में। यस। ओके, खंडू जी ने सबमिट कर दिया है, प्रणीता जी ने भी खंडू सबमिट कर दिया है। ओके, लेट मी सी, लेट मी चेक द टॉपिक्स। तो कुछ लोगों ने हम में से ऑलरेडी सबमिट किया है फॉर्म।
मैं देखता हूँ टॉपिक्स क्या क्या दिए गए हैं। ओके ओके, एनवायरनमेंट पे काम होना चाहिए, वो तो हम करने ही वाले हैं। वेस्ट मैनेजमेंट बोल रहे हैं। देन डेली नीड्स मतलब रोज का जो लगने वाला है, वाटर मैनेजमेंट। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, बायोगैस। हाँ हाँ, बायोगैस पे काम होना चाहिए, बायोगैस के एप्लीकेशंस उसके ऊपर काम होना चाहिए। ओके, डिटेल्स ऑफ बायोगैस सिस्टम। ओके, एनीथिंग एल्स? और कुछ और किसी का रहा है सबमिट करना? शीट को लिंक करते हैं, रुक रुक जाइए। ओके, हाउ टू अर्न। ओके ग्रेट। हाउ टू अर्न इफेक्टिव अवेयरनेस फॉर इफेक्टिव अवेयरनेस। हाँ, इफेक्टिव अवेयरनेस फॉर एनवायरमेंट इजी एंड इफेक्टिव बायो वेस्ट मैनेजमेंट प्रणीता इज सेइंग बायो वेस्ट मैनेजमेंट पे उनको काम करना है। हाउ टू अर्न इन एनवायरमेंट सेक्टर, ये वैशाली जी कह रही है। वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटरी सिस्टम्स। ओके, वाटर मैनेजमेंट, बायोगैस फॉर दिस एक्टिविटी। ओके ओके, इतने टॉपिक्स हमारे पास में आए हुए हैं। तो इसमें से हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मैं एक एक्टिविटी प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पे हम लोग जितने भी आए हुए ऑप्शंस है उसको एक साथ में लेके उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में हम लोग फाइनलाइज करेंगे कंप्लीट 52 टॉपिक्स। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग खुद डिजाइन करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए और किस हिसाब से हमको आगे लर्निंग लेके जाना है। तो इसके लिए हम लोग बने रहेंगे, हम लोग इसी मोड पे प्लान करेंगे, और जो भी प्लान होगा वो प्लान हर कोई मीटिंग में जो भी सदस्य है वो लोग हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं। करीब करीब 12 लोगों ने सबमिशंस किए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का मीटिंग्स है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। कुछ मेजर चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मीटिंग में, और इसमें से लर्निंग भी बढ़ेगा। और डेफिनेटली वॉट एवर वैशाली सेइंग लाइक अर्निंग, तो अर्निंग मोड पे भी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। सो आशा करता हूँ आने वाला जो साल है वो एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के मेंबर्स के लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चीज़ में आके हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन मोड पे काम कैसे करेंगे, तो ये चीज़ें हम लोग प्लान करते हैं। सो दोस्तों, आप इस मीटिंग में आने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीकेंड है, सो एंजॉय योर वीकेंड एंजॉय कीजिए, और जरूर 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 कनेक्टेड रहिए। इसके लिए एक अभी दो चीज़ें ऐसी है कि एक तो व्हाट्सएप ग्रुप भी, जो पहले वाला मेरा व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें मैं जो ये डालता था मैं मेरी तरफ से सिर्फ डाल सकता था और वो आपको मिलता था, इंडिविजुअली मिलता था, लेकिन उसमें भी सभी नंबर्स थे। सो आई एम रिमूविंग दैट एंड आई एम कमिंग टू अ स्पेसिफाइड ओनली एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप, और जो भी डिस्कशन जो भी चीजें होंगी वो उसी पे होगी, और उस मोड पे ही हम लोग एक्टिविटी लेंगे। सेकंड, प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है। प्लेटफॉर्म इसी इसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करने वाले हैं, ग्राफिक के प्लेटफॉर्म पे ही काम होगा, और उस मोड पे हम काम कर सकते हैं। अगर ग्रुप में से अभी जितने लोग अवेलेबल है उनमें से अगर किसी को कुछ बात करनी है या कुछ करना है तो हम लोग कर सकते हैं। उनको आपके स्क्रीन पे अगर दिख रहा होगा हैंड का लोगो, तो आप रेज कर सकते हो इफ यू वांटेड टू से, सो दैट
यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि मैं उनको स्टेज पे बुलाऊंगा सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन टॉक. Yes, anyone from the participants wish to come on stage and say something? Yes, सूरज जी आप कुछ बात करना चाहेंगे? No, Ashish sir, going great. Okay, okay, thank you so much. So okay, all of you, मुझे कोई यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है. मेरे लिए भी ये सिस्टम न्यू है. इसमें कुछ टैब्स है, माइक ऑन, वीडियो ऑन, उसके बाद में लीव की एक बटन है और इनवाइट के लिए भी एक बटन है और एक्सेप्टेंस के लिए भी एक बटन है. लीव स्टेज करके एक पार्ट दिया हुआ है. ऐसे 6 पार्ट्स है. आपको आपके ईमेल आईडीज मैंने सिस्टम में डाले हुए. आपको हर वीक में एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब का मीटिंग का एक ईमेल आने वाला है और व्हाट्सएप मैसेजेस का जो ग्रुप रहेगा उसके ऊपर आप चिंता ना करें. आपको कोई भी अलग डिस्टरबेंसेस नहीं रहेंगे. सिर्फ एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब के मैसेजेस ही इसमें आएंगे और हमने दूसरे किसी लोगों को यहाँ पे एक्सेस नहीं दिया है. सो इट इज प्योरली फॉर द एनवायरमेंटल लीडर्स क्लब मेंबर्स ओनली. सो वेलकम टू दिस न्यू सिस्टम और मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे 8 PM पे. और नेक्स्ट फ्राइडे 8 PM पे हम लोग डिटेल टॉपिक्स का डिस्कशन करके प्लानिंग करेंगे कि पूरे 52 वीक्स के टॉपिक्स क्या क्या होने चाहिए और किस प्रकार से होने चाहिए. Thank you so much for joining all of you and be there for this I will say the global mission of environment and welcome you all into this environmental leaders club member. आप सभी को शुभकामनाएं ये मेंबरशिप मिलने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीक फ्राइडे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर.